Hello everyone. I am going to start the Doppler effect. So what is the Doppler effect? So Doppler effect होता क्या है? So Doppler effect means जब आपकी साउंड जो है किसी सोर्स से आ रही है तो वो ये जो साउंड जो है किसी ऑब्जर्वर के पास जा रही है. सो जो दोनों के बीच जो फ्रिक्वेंसी है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड विच आर कमिंग फ्रॉम द सोर्स and the frequency of the sound which is received by the source, there is a difference between that frequency. और ये जो difference in frequency जो है that depends on the relative velocity between the velocity of the source and the velocity of the observer. And this difference in the frequency because of the relative motions between the source and the observer, that is called the Doppler effect. So we are going to start. What is the Doppler effect? Suppose this is your source and this is the observer. Source से आपकी जो है sound आ रही है. Suppose this is the consecutive pitch of the sound which are coming from the source. So this is the case in which the source as well as the observer is stationary. तो इस केस में दोनों के बीच कोई भी relative motions नहीं है. There is no relative motions between the source and the observer. तो इस केस में जो frequency आपकी source से आ रही है, the same frequency that will be heard by the sound, the same frequency आपकी जो है observer भी same frequency of the sound को वो सुनेगी. Suppose इसमें मैं कंसीडर कर लेता हूं दिस द वेवलेंथ. वेवलेंथ इट इज द डिफरेंस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव जो पल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज योर लैम्डा, दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ. एंड सपोज जो साउंड आ रही है यहां से, साउंड की वेलोसिटी मैंने मान लिया कि v इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड. सो व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव पल्स? सपोज हियर डेल्टा t इज द टाइम between two consecutive pulse. So delta t that will be equal to, it is your lambda divided by v. अब जो आपकी जो ऑब्जर्वर जो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी जो सुनेगी, तो यहां पे भी जो है टाइम इंटरवल बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव पल्स दैट will also remain same. So here also the delta v that will be also same and that will be equal to lambda by v. So what is the frequency? So frequency that is here by the observer, that is equal to 1 divided by delta t, and here delta t that is equal to lambda by v. So that is equal to, it is your v by lambda, and that is your frequency of the sound which are coming from the source. So this is the first case in which source and the observer are stationary. उस केस में कोई भी फ्रीक्वेंसी जो है आपकी चेंज नहीं होगी. नाउ वी आर कमिंग द अनदर कंडीशन. सपोज वी आर कमिंग द कंडीशन 2, केस 2. इसमें क्या है कि सोर्स आपका स्टेशनरी है एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग, दिस इज द ऑब्जर्वर एंड विच इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स विद द वेलोसिटी ऑफ द v0. तो इसमें आप देख रहे हो कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच रिलेटिव वेलोसिटी है. So what is the relative velocity between the source and the observer? So we can write v relative, that is equal to, it is v minus v naught. Here v is the velocity of the sound and v naught is the velocity of the observer. तो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है. सो रिलेटिव वेलोसिटी जो यहां पे हो जाएगी, दैट इज v प्लस v नॉट, राइट. सो दिस इज योर रिलेटिव वेलोसिटी. अब इस केस में हम निकालेंगे व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द पल्स दैट इज हियर्ड बाय द ऑब्जर्वर. सो दैट इज इक्वल टू, यहां पे जो डेल्टा टी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू lambda divided by v relative. So here v relative is equal to v plus v naught. Now the frequency that is here by the observer, that is equal to 1 divided by delta t. और इसको हम लिख सकते हैं, this is equal to v plus v naught
divided by lambda. Now this we can write as v plus v naught divided by v into v by lambda. अब यहाँ पे जो v by lambda जो है, this is the frequency of the sound that is coming from the source. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, this is equal to v plus v naught divided by v into the frequency of the sound which are coming from the source. तो इस केस में आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो फ्रीक्वेंसी हेड बाय द ऑब्जर्वर आपकी चेंज हो गई है. क्यों? क्योंकि दोनों के बीच क्या है, यहां पे रिलेटिव मोशंस है. इन द सेम केस, नाउ कम टू द थर्ड केस, केस नंबर 3. यहां पे मैं कंसीडर कर रहा हूं दिस इज द सोर्स एंड दिस ऑब्जर्वर इज मूविंग away from the source with a velocity of v naught. तो इस केस में what is the frequency that is heard by the observer? So this is equal to f naught is equal to, we can write v minus v naught divided by v into f. यहां पे मैंने माइनस क्यों सब्स्टिट्यूट किया? बिकॉज here observer is moving away from the source, so we have taken the negative side. एज ए प्रीवियस स्लाइड में आप देख सकते हो कि यहां पे when the observer is moving toward the source, उसके लिए आपका पॉजिटिव साइन आया. तो सेम इन सिचुएशन इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, सो वी हैव टेकन हियर नेगेटिव साइन. सो दिस इज केस नंबर 3. नाउ कम टू केस नंबर 4. अब इस केस नंबर 4 में मैं यहां पे आपका सोर्स को मूव कर रहा हूं और ऑब्जर्वर को स्टेशनरी रख रहा हूं. नाउ दिस सोर्स इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ vs, और इस केस में मैं ले रहा हूं कि सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. दिस ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर यहां पे क्या है, स्टेशनरी है. तो इस केस में व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड विथ रेस्पेक्ट टू द सोर्स? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेगी, सोर्स भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में आपका उसका वेलोसिटी ऑफ द साउंड मूव कर रही है. सो वेलोसिटी ऑफ द साउंड भी इधर ही मूव करेगी. v is the velocity of the sound and vs is the velocity of the source. Please don't confuse. v is the velocity of the sound and vs is the velocity of the source. Okay, so what is the relative velocity? Means we have to write what is the velocity of the sound with respect to the source. So यहां पे जो v relative हो जाएगी that is equal to v minus vs. So what is the distance between the two consecutive impulse? दो इंपल्स के बीच का डिस्टेंस जिसको हम लैम्डा लिखते हैं, वो लैम्डा यहां पे क्या हो जाएगा, लैम्डा इफेक्टिव. दैट विल बी लैम्डा इफेक्टिव, क्योंकि लैम्डा जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, इस केस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि सोर्स भी मूव कर रही है और साउंड मूव कर रही है. यहां पे सोर्स भी मूव कर रही है. सो लैम्डा वी हैव टू राइट व्हाट इज द लैम्डा इफेक्टिव. तो इस केस में जो लैम्डा इफेक्टिव हो जाएगी आपकी, that is equal to v minus vs into t, where t is the time period. T is the time period. Now what is the frequency that is heard by the observer? So this is the frequency that is heard by the observer, that is equal to, सबसे पहले हम टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, what is the time interval between the two pulse which is heard by the observer. So we can write here delta t that is equal to lambda effective. यहां पे ध्यान देने की बात है कि मुझे लैम्डा की जगह लैम्डा इफेक्टिव लिखना है, क्योंकि लैम्डा आपका चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स. सो लैम्डा इफेक्टिव डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द साउंड. सो ए लैम्डा इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू v minus vs into t divided by v. Now what is the frequency heard by the observer? That is f. This is the frequency that is heard by the observer, that is equal to 1 by delta t, and this is equal to v divided by
v माइनस वी एस इंटू टी, और 1/t मुझे पता है कि 1/t क्या होगा, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड विच आर कमिंग फ्रॉम द सोर्स, एंड दैट इज इक्वल टू fs into v divided by v minus vs. So this is the case in which the source is moving towards the observer. Same, now we will come to the case number 5. केस 5 में क्या है कि जो सोर्स है दैट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. सपोज दिस इज योर सोर्स एंड दिस इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर विथ ए वेलोसिटी ऑफ vs. ऑब्जर्वर क्या है यहां पे आपका स्टेशनरी है. तो इस केस में व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी दैट इज हियर बाय द ऑब्जर्वर, दैट इज फ्रीक्वेंसी हियर बाय द ऑब्जर्वर. ये क्या हो जाएगा, प्रीवियस वाली केस का जस्ट अपोजिट हो जाएगा. जैसे मैंने इसमें यूज किया है माइनस v माइनस vs, तो इस केस में v प्लस आपकी vs हो जाएगी. सो दिस इक्वल टू v डिवाइड बाई v प्लस vs into fs. fs is the frequency of the sound which are coming from the source. So these are all the cases in which we consider the relative motions between the source and the observer. अब जैसे मैं एक केस लेता हूं जिसमें कि दोनों मूव कर रही है, आपकी सोर्स भी मूव कर रही है और ऑब्जर्वर भी मूव कर रही है, तो उस केस में व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी हियर बाय द ऑब्जर्वर, उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं. सो लेट्स सी. सपोज दिस इज द सोर्स and this source is moving towards the observer with a velocity of vs, और यहां पे जो ऑब्जर्वर है this is also moving towards the source with a velocity of v naught. अब इस केस में हम कैसे निकालेंगे, how we can determine the frequency here by the observer. So we can write the frequency here by the observer. So पहले यहां पे वेलोसिटी हम कंसीडर कर रहे हैं आपका ऑब्जर्वर का. ऑब्जर्वर किधर मूव कर रही है, ऑब्जर्वर जो है मूव कर रही है आपकी, इट इज मूविंग टुवर्ड द सोर्स. तो जो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर को हम रखते हैं, किस में रखते हैं, आपका न्यूमरेटर में रखते हैं. तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को देखेंगे, एंड इट इज मूविंग टुवर्ड द सोर्स, सो वी कैन राइट v प्लस v नॉट, राइट. अब यहां पे सोर्स भी मूव कर रही है, सोर्स किधर मूव कर रही है, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. तो अगर मुझे वेलोसिटी लिखनी है, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, तो इसको हम किस में रखेंगे, इसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, एंड डिवाइड बाई ये हो जाएगा v माइनस vs, बिकॉज सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर इनटू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड विच आर कमिंग फ्रॉम द सोर्स. सो इन दिस वे we can determine the frequency heard by the observer in different situations. Now we are coming a problem. Suppose यहां से कोई व्हीकल आ रही है एंड व्हीकल में आपका एक हॉर्न लगा हुआ है, राइट. और यहां पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, एंड दिस व्हीकल इज मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट. ये ऑब्जर्वर के कंपेयर में ये मूव कर रही है लेफ्ट टू राइट विद ए वेलोसिटी ऑफ, मान लेते हैं इसका वेलोसिटी जो है ये vs है, राइट. तो इन फर्स्ट केस, दिस द फर्स्ट केस, जब क्या है कि जो है ये व्हीकल जो है मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी दैट इज हियर बाय द ऑब्जर्वर. तो इस सिचुएशन में मैं ये कंसीडर कर लेता हूं दैट f1 इज द फ्रीक्वेंसी दैट इज हियर बाय द ऑब्जर्वर व्हेन दिस व्हीकल इज कमिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. सपोज आई राइट इज f1. सो व्हाट इज f1? So f1 that is equal to v divided by v minus vs
into fs. fs is the frequency of the sound which are coming from the source. अब जब व्हीकल आपकी ऑब्जर्वर से राइट में चली गई है, सपोज ऑब्जर्वर, अब यहां पे आपकी वेलोसिटी, यहां पे आपकी जो है व्हीकल आ गई है, now here we can observe that the source is moving away from the observer. यहां पे ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी. आई राइट हियर ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी. So what is the frequency of the sound that is heard by the observer in this case? Suppose we write as the f2. So what is f2 here? This is equal to v divided by, अब यहां पे क्या है, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. सो दिस इक्वल टू v डिवाइड बाई v प्लस vs इंटू fs. सो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज हो गई, और हम मुझे ये पता है कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द बिट. तो इसका मुझे अगर बिट फ्रीक्वेंसी निकालना है, बिट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट इट इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी. Bit frequency, that is equal to change in frequency, and that we can write as f1 minus f2, right? So what is f1 here? This is equal to v divided by v minus vs into fs minus v divided by v plus vs into fs, and this is equal to, यहां पे हम कॉमन ले सकते हैं v इंटू एफ एस, 1 बाई वी माइनस वी एस माइनस 1 बाई वी प्लस वी एस, एंड दैट इज इक्वल टू वी एफ एस इंटू दिस और वी स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर, दिस इक्वल टू वी प्लस Vs minus V plus Vs. So this V and V's cancel out. So here it comes to VFS into Vs divided by Vs square minus Vs square. So this is called the bit frequency. Bit frequency is, that is change in frequency. This is BF, means this is your bit frequency. Now come to the another problem. Suppose this is your fixed wall. These are fixed wall. मान लो यहां पे कोई सोर्स है, दिस योर सोर्स, और यहां पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है. Suppose this observer is moving with a velocity of v naught. ये आपकी जो है लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, और मान लो ये जो सोर्स है इट इज मूविंग टुवर्ड्स द फिक्स्ड वॉल विथ ए वेलोसिटी ऑफ द vs. तो इसमें मुझे निकालना है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी हेड बाय द ऑब्जर्वर फ्रॉम द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल. What is the frequency heard by the observer after reflection
from wall. तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें समझने वाली, जो फिक्स्ड वॉल दैट इज एक्ट एज द रिफ्लेक्टर. दिस फिक्स्ड वॉल इज एक्ट एज द ऑब्जर्वर एज वेल एज इट एक्ट्स एज द रिफ्लेक्टर. तो यहां से अगर सोर्स से अगर साउंड आ रही है और अगर जो है ऑब्जर्वर, अगर ये जो फिक्स्ड वॉल इट एक्ट्स एज द ऑब्जर्वर. सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड दैट इज इंसिडेंट ऑन दिस फिक्स्ड वॉल. तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? द फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट. इसको हम एक ऐसा ऑब्जर्वर कंसीडर करेंगे जो कि क्या है, आपका स्टेशनरी है. सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी दैट इज इंसिडेंट. इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो होगा वो क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू, यहां पे सोर्स मूव करिए एंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. सो वी कैन राइट इट इज V डिवाइड बाई V minus Vs into Fs. Fs is that is the frequency that is coming from the source. और जो फिक्स्ड वॉल है इट इज एक्ट एज द रिफ्लेक्टर. ये सोर्स की तरह काम कर रहा है, ये सोर्स की तरह भी काम कर रहा है, इसलिए हम इसको रिफ्लेक्टर भी बोलते हैं. तो जितना इस पे फ्रीक्वेंसी आपकी इंसिडेंट होती है उतना ही इससे फ्रीक्वेंसी आपकी रिफ्लेक्ट भी होती है. So we can write F incident that is equal to F reflected. अब यहां से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ये फ्रीक्वेंसी उसको मिलेगी ऑब्जर्वर को F reflected फ्रीक्वेंसी मिलेगी. So we can write the frequency heard by the observer after reflection from the wall. तो इस केस में जो we have to write frequency reflected into. अब यहां पे ऑब्जर्वर है, यहां पे क्या है, सोर्स एक तरह से स्टेशनरी है. सोर्स इज स्टेशनरी, राइट. सोर्स इज नॉट मूविंग, लेकिन ऑब्जर्वर जो है मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ द v नॉट एंड इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स. तो यहां पे हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, इट इज v माइनस V naught divided by V. Now just substitute the value of the F reflected. So this is equal to V divided by V minus Vs into Fs into V minus V naught by V. This V and this V is cancel out. Now V minus V naught divided by V minus Vs into Fs. I hope this topic is clear to all of you and thank you to everyone. Okay.